equivalence relation. There is a R1 and R2 B are two equivalence relation are there on a set of an arbitrary set. It is a set of a real number, complex number, anything. In on an arbitrary set A, then prove that R1 intersection R2 is also an equivalence relation on the given set A. अगर R1 और R2 दो इक्विवेलेंस रिलेशन है किसी सेट पर, तो ये प्रूव करना है इनका इंटरसेक्शन भी क्या होगा, इट इज ऑल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ गिवन सेट ए. तो हाउ टू प्रूव, हमने कंसीडर किया इट इज गिवन दैट R1 and R2 two equivalence relation. It means R1 follows the reflexive, symmetric and transitive property, and R2 also follows the reflexive, symmetric and transitive property. अब फर्स्ट थिंग, हमें ये सबसे पहले ये शो करना पड़ेगा कि R1 इंटरसेक्शन R2 में एलिमेंट्स कंटेन कर रहे हैं. क्लियर, R1 इंटरसेक्शन R2 इज नॉन एम्प्टी फर्स्ट, देन प्रूव दैट R1 इंटरसेक्शन R2 इज रिफ्लेक्सिव, R1 intersection R2 is symmetric, and R1 intersection R2 is transitive. So we have in the mind that what we go for proving, we are first to prove that R1 intersection R2 is non-empty. Okay, clear? Now, because R1 is a relation on set A, it means R1 is a subset of A1 cross, sorry, A cross A. It is not a A1. R1 is subset of A cross A. And R2 is also a relation on a set A. It means R2 is also a subset of A cross A. तो R1 is subset of A cross A, R2 is subset of A cross A. तो इन दोनों का intersection is also a subset of A cross A. R1 intersection R2 is subset of A cross A. This implies because it is subset of A cross A, it means it is a relation on a set A. If R1 is non-empty, R2 is non-empty, then the intersection of R1 and intersection R2 is also non-empty. Clear? First to prove that, हमने क्या prove कर दिया, R1 intersection R2 is relation on a set A. Now we have next proof that this relation which we have is reflexive. Reflexivity की property के लिए हम क्या करेंगे, because we have that R1 is reflexive and R2 is reflexive. So for every A belongs to A is related to R1, A comma A belongs to R1, and because R2 is reflexive, therefore for every element belonging to A set A comma A is related to R2. The elements are A comma A belongs to R1, A comma A belongs to R2, therefore common element belongs to intersection. So A comma A belongs to R1 intersection R2 for every A belongs to A. Every element of a set A is related to itself. Therefore, this intersection is reflexive. Your next property is symmetricity. Symmetric property के लिए if हमें given है कि A comma B, A is related to B by using the relation R1 intersection R2. So A comma B belongs to R1 intersection R2. Now we have to prove that B comma A belongs to R1 intersection R2. Here we have that R1 and R2 are symmetric. R1 and R2 are symmetric. Therefore, if AB belongs to R1 and AB belongs to R2, then because of symmetricity property, B comma A belongs to R1 and B comma A belongs to R2 because R1 and R2 are symmetric. तो same elements R1 को भी belong कर रहा है, same element R2 को भी belong कर रहा है. It means B comma A belongs to R1 intersection R2 and hence R1 intersection R2 is symmetric. Now next is your transitive property. It is given that A comma B belongs to R1 intersection R2, B comma C belongs to R1 intersection R2. हम consider कर रहे हैं कि AB belongs to R1 intersection R2 and BC belongs to R1 intersection R2. Now to prove that A comma C belongs to R1 intersection R2, because R1 and R2 both are transitive, याद रखिएगा. तो A comma B belongs to R1 intersection R2. It means AB belongs to R1 and AB belongs to R2. यहाँ से BC belongs to R1 and BC belongs to R2. Now, by the property of changing the bracket, यानी कि associative property, AB belongs to R1, BC belongs to R1, and AB belongs to R2. This elements and BC belongs to R2. Because R1 follows the property of transitivity, so A comma C belongs to R1 and R2 is also follows the property of transitivity.
So A comma C belongs to R2. सेम एलिमेंट्स R1 को भी बिलोंग कर रहा है, सेम एलिमेंट R2 को भी बिलोंग कर रहा है. इट मीन्स AC बिलोंग्स टू R1 इंटरसेक्शन R2 एंड देयरफॉर दिस इज ट्रांजिटिव. R1 intersection R2 is reflexive, symmetric and transitive. Therefore, R1 intersection R2, which is a relation, is an equivalence relation on a set A. Clear? Is any confusion anyone have? No, ma'am. Next example देखा जाए. Give an example to show that the union of two equivalence relation on a set A need not be an equivalence relation on a set A. कह रहे एक एग्जाम्पल दीजिए, आप ये शो करिए कि जो दो इक्विवेलेंस रिलेशन का यूनियन है वो कोई जरूरी नहीं है कि इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए. ठीक, तो इंटरसेक्शन के साथ आपकी वो आपकी नेसेसरी की कंडीशन आ जाएगी कि वो तो होगा ही होगा, बट इन केस ऑफ यूनियन इट मे बी अ इक्विवेलेंस रिलेशन और मे नॉट बी अ इक्विवेलेंस रिलेशन. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. यहाँ पर आपको एक ऐसा एग्जाम्पल देना है कि दो इक्विवेलेंस रिलेशन है लेकिन उनका यूनियन जो होगा वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा. तो एग्जाम्पल हमने कंसीडर किया, लेट A1 2 3 containing an element and R1 and R2 be are two relation and having the R1 element, R1 में कौन कौन से एलिमेंट है 1,1 2,2 3,3. ये तीन एलिमेंट शो करेंगे रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी को. 1,2 2,1 ये शो कर रहा है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को, एलिमेंट कंटेन कर रहा है. एंड 1,2 2,1 देखिए ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी. फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट 1,1 बिलोंग्स टू दिस. 1,1 1,2 फिर क्या हो रहा है 1,2 अगेन बिलोंग्स टू दिस. तो सारे एलिमेंट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को R1 के फॉलो कर रहे हैं. इट मींस R1 इज योर इक्विवेलेंस रिलेशन. सिमिलरली हमने R2 में एलिमेंट इस तरह के कंसीडर किए हैं कि यहाँ पर लास्ट टू एलिमेंट आर 1 3 and 3 1. दे ऑल द एलिमेंट फॉलोज द प्रॉपर्टी ऑफ रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्रिसिटी एंड ट्रांजिटिविटी. तो R2 इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. We easily prove that R1 and R2 are equivalence relation. For each element A, 1 2 3, every element related to itself. It means ये नंबर्स और ये नंबर रिफ्लेक्सिविटी की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहे हैं. अब सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या होता है 1 2 1 1 ए बी बिलोंग्स टू बी ए बिलोंग्स टू. तो हमारा 1 1 1 1 ये तो ऐसे ही एज इट इज 1 2 2 एन बिलोंग कर रहा है यानी कि सिमेट्रिसिटी. लास्ट आती है ट्रांजिटिविटी. ये दो लास्ट के एलिमेंट देखिए 1,2 2,1. तो फर्स्ट और लास्ट 1 1 बिलोंग्स टू दिस. अगर हम ये एलिमेंट 2,2 और 2,1 देखें तो रिजल्टेंट क्या आएगा 2,1 2,1 अगेन बिलोंग्स टू दिस. इसी तरह 3,3 एलिमेंट ही नहीं है तो ये एज इट इज. यानी कि सारी प्रॉपर्टी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रही इन दोनों रिलेशंस में. इट मींस इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. नाउ R1 यूनियन R2 हमने कैलकुलेट किया तो R1 यूनियन R2 में क्या आ जाएगा 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 एंड 1 3 3 1 3 1. इट इज रिटन एज हियर 3 1. ये सारे कंपोनेंट आ जाएंगे इसमें 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1 3 1 3 एंड 3 1 यूनियन में. अब आप देखिए क्या ये रिलेशन जो R1 यूनियन R2 दिया हुआ है क्या ये सारी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रहा है. पहले तीन एलिमेंट को देख के तो है कि हाँ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है. सिमेट्रिक प्रॉपर्टी भी है 1 2 2 1 1 3 3 1. सिमेट्रिक ऑल्सो सेटिस्फाई. अब ट्रांजिटिव देखते हैं 1 2 बिलोंग्स टू दिस. इस तरह से देखो 2 1 बिलोंग्स टू दिस एंड 1 3 बिलोंग्स टू दिस. ये एलिमेंट है 2 1 बिलोंग कर रहा है यूनियन में और 1 3 बिलोंग कर रहा है यूनियन में. तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट 2,3 is not here in this set. 2,3 doesn't belongs to R1 union R2. दिख रहा है कहीं 2,3 है इसमें नहीं है. और जबकि बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी ये एलिमेंट यहाँ पर होना चाहिए. तो यानी कि यूनियन में ट्रांजिटिविटी की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है. इट मींस R1 यूनियन R2 इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन. यही इन्होंने कहा था शो गिव एन एग्जांपल टू शो दैट union is not an equivalence relation because union doesn't follow the transitivity property. Therefore it is not an equivalence relation. Isn't clear everyone? सबको क्लियर हो गया?
यस मैम। यस मैम। आ गया? आगे देखिए, नेक्स्ट आर्टिकल इज योर इक्विवेलेंस क्लासेस। रिलेशन पढ़ लिया, नाउ वी फाइंड द रिलेशन पढ़ लिया हम लोगों ने। ये सारे एग्जाम्पल इस सेट में भी सॉल्व है, ये जो आपको नोट्स दिए गए हैं इसमें भी सॉल्व है। प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस। अब इक्विवेलेंस क्लासेस क्या होती है? जब हम इक्विवेलेंस का नाम ले रहे हैं, यानी कि रिलेशन होना चाहिए, और वो रिलेशन कैसा होना चाहिए? इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए, ठीक। और रिलेशन है तो किसी सेट पर डिफाइंड होगा। तो सबसे पहली चीज ये है इसमें क्लास के लिए कि एक सेट जो कि नॉन एम्प्टी होना चाहिए, उस सेट पर एक रिलेशन डिफाइंड होना चाहिए, यानी कि वो रिलेशन कैसा रिलेशन होना चाहिए? इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। फॉर क्लासेस देयर आर टू नेसेसरी कंडीशन, देयर इज अ नॉन एम्प्टी सेट A and there will be a one relation R which is equivalence relation on a set A. Then we find the equivalence classes. Clear? For equivalence classes, any equivalence class जो होगी वो जनरेट होगी सेट ए के ही एलिमेंट से। ध्यान से सुनिएगा बात को, इक्विवेलेंस क्लास जो होगी वो सेट ए के एलिमेंट से ही जनरेट होगी। और वो कैसे जनरेट होगी? उसमें क्या होगा? सेट ए के एलिमेंट से सेट ए कैपिटल ए के एलिमेंट से एक क्लास जनरेट होगी, और वो जो सेट मिलेगा, जो क्लास मिलेगी, वो किस तरह के एलिमेंट का सेट होगा कि वो जिस एलिमेंट से जनरेट हो रही है और सारे एलिमेंट सेट ए के उस एक सिंगल एलिमेंट से रिलेट कर रहे हो। ये लिखा हुआ है, लेट आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन अ सेट ए एंड लेट ए बी एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू ए, then the set of all those elements of set A which are related to element A, यानी इस A को हमने फिक्स्ड कर दिया। इस A से जितने भी एलिमेंट रिलेट कर रहे होंगे सेट A से के एलिमेंट से, वो सारे के सारे किस में आएंगे? इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय इस स्मॉल a से, is called equivalence class determined by small a and it is denoted by bracket a और bar a। बहुत सिंपल सा तरीका है इसको समझने का, एक मिनट एग्जाम्पल की हेल्प से ये समझ में आ रहा है। डेफिनेशन इज दैट is there is an any set capital A and R be an equivalence relation on a set A, it means R is a subset of A cross A, then one of the element, arbitrary element small a belongs to capital A, then the set of all those elements of capital A के सारे elements which are related to this fixed element small a, then it called it as an equivalence class determined by small a, which is thus small a is given by set of all those elements of capital A such that B is related to A. Or we also say that A is related to B because R is symmetric relation here, तो B is related to A लिखे या A is related to B लिखे because R is an equivalence relation। इस तरह से समझिएगा। एक एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, बहुत सिंपल सा। अभी जो एग्जाम्पल लिया था, कैपिटल A having element 1, 2, 3 comma 3 is this thing, and relation R which is an equivalence relation containing element first 1, 1 क्या लिख रहा है ये, ब्रैकेट 1, 1 second component bracket 2, 2 third component 3, 3 and because it is equivalence relation एक और हम एलिमेंट ले लेते 1, 2 and follows the transitive property 2, 1। A be the set containing the element A be the set containing element 1, 2, 3 and दिख रहा है सबको? व्हाइट बोर्ड लिखा हुआ दिख रहा है सबको? यस मैम। एवरीवन सीन दैट? ओके, हम इक्विवेलेंस क्लास को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ए जिसमें कि 3 एलिमेंट्स है 1, 2, 3,
एंड आर आपका रिलेशन है जिसमें एलिमेंट है 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। अब हमें क्या करना है, इक्विवेलेंस क्लास जनरेट करना है। इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन क्या है, आपके सामने लिखी हुई है, किसी एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट होगी। मान लीजिए हमने वो सिंगल एलिमेंट 1 ले लिया, 1 बिलोंग्स टू कैपिटल ए, ठीक, 1 इज ए सिंगल एलिमेंट विच बिलोंग्स टू कैपिटल ए। अब 1 से जनरेटेड इक्विवेलेंस क्लास हम फाइंड आउट करते हैं। इक्विवेलेंस क्लास कैसे डिफाइंड है, पहले तो हम डेफिनेशन लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स बी बिलोंग्स टू कैपिटल ए such that B is related to small a। अगर हम यहाँ पर 1 लिख के बाय डेफिनेशन लिखते हैं तो ए इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन ये हमारे सामने लिखी है। अब हम 1 से जनरेटेड इक्विवेलेंस क्लास फाइंड आउट करते हैं, इक्वल्स टू क्या होगी। अब आप देखो रिलेशन में, देखो आपसे कहते हैं वो सारे सेट ए के एलिमेंट्स आएंगे इस इक्विवेलेंस क्लास में जो 1 से रिलेट कर रहे हो। तो 1 से पहला एलिमेंट खुद से रिलेट कर रहा है, 1 रिलेटेड टू 1, यानी कि पहला एलिमेंट यहाँ पर क्या आ जाएगा 1। फिर 1 से रिलेट करने वाला दूसरा एलिमेंट कौन है, 1 रिलेटेड टू 2, यानी दूसरा एलिमेंट क्या आ गया 2। और कोई एलिमेंट यहाँ पर है जो कि 1 से रिलेट कर रहा है, देख रहे हैं आर में कोई ऐसा एलिमेंट है जो 1 से रिलेट कर रहा है, क्यों बच्चों दिख रहा है और कोई एलिमेंट। बाय द डेफिनेशन इक्विवेलेंस क्लास जनरेटेड बाय ए कंटेन्स all those elements of set A which are related to this fixed element A। यहाँ पर हम 1 से generated equivalence class find out कर रहे हैं, तो all those elements of set A which are related to 1, A की जगह क्या आ जाएगा 1। तो हमने देखा 1 से 1 ही रिलेट कर रहा है तो पहला एलिमेंट 1 आ गया। 1 से दूसरा एलिमेंट जो रिलेट कर रहा है वो क्या है 2, 2 रिलेटेड टू 1। अगर इस डेफिनेशन को देखोगे तो क्या आएगा 2 रिलेटेड टू 1, तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। और कोई ऐसा एलिमेंट है जो रिलेट कर रहा है, क्यों नो मैम। निकिता, निशिका, इज एनी एलिमेंट विच आर रिलेटेड टू 1 rather than 2? तो क्लियर है हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास। अब जरा 2 से जनरेटेड इक्विवेलेंस क्लास बताइए क्या होगा। सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट, ये होगा, हम डेफिनेशन लिखे दे रहे हैं, सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स बी belongs to capital A such that B related to 2। कौन सा सेट आएगा, कौन से एलिमेंट्स आएंगे मैम 2,1 मैम 2,2 2, एक तो 2 रिलेटेड टू 2, 2,2 नहीं आएगा बेटा, 2 रिलेटेड रिलेटेड टू 2 और नहीं मैम वही क्या था 2 रिलेटेड टू 2 और 2 रिलेटेड टू 1। B रिलेटेड टू 2, इसको देखो तो 1 रिलेटेड टू 2। अगर ब्रैकेट लिखा हुआ है इस तरह से 1,2 तो ये होता है 1,2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हम पढ़ते क्या है 1 रिलेटेड टू 2, ये रीड करते हैं। क्लियर है। तो देखो 2 से यहाँ पर लिखा है B रिलेटेड टू, तो नेक्स्ट B कौन सा है 1 रिलेटेड टू 2, 2 फिक्स्ड एलिमेंट मिल रहा है, यानी कि नेक्स्ट एलिमेंट क्या आ जाएगा 1। क्लियर। वैसे यहाँ पर वो चीज अभी बताएंगे, दोनों चीजें होती हैं A रिलेटेड। अब नेक्स्ट एलिमेंट A में कौन सा है 3 है, 3 से रिलेटेड इक्विवेलेंस क्लास क्या होगी बताइए। सेट ऑफ ऑल B belongs to capital A such that it is such that B related to 3 ब्रैकेट क्लोज। बताइए कौन सा एलिमेंट आएगा मैम 3 रिलेटेड टू 3, तो बस 3 आएगा, बस 3 आएगा। सिर्फ दिख रहा है ना 3 से रिलेट करने वाला कोई और एलिमेंट कौन है, सिर्फ और सिर्फ 3 है, तो इट कंटेन्स ओनली 3। ठीक है, क्लियर है सबको हाउ टू फाइंड द इक्विवेलेंस क्लास एंड व्हाट इज एन इक्विवेलेंस क्लास। एवरीवन, किसी को कोई कंफ्यूजन, डज एनीवन हैव अ कंफ्यूजन इन इक्विवेलेंस क्लास? इफ नॉट तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इन केस ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। इक्विवेलेंस क्लास या तो डिसजॉइंट होती हैं या दे आर आइडेंटिकल। आपको दिख रहा है 2 इक्विवेलेंस क्लासेस आइदर डिसजॉइंट और एन आइडेंटिकल। यहां से देखो 1 से जनरेटेड इक्विवेलेंस क्लास और 2 से जनरेटेड इक्विवेलेंस क्लास या तो आइडेंटिकल होंगी
टू इक्विवेलेंस क्लासेस और द आइडेंटिकल आइदर डिसजॉइंट, या तो वो डिसजॉइंट होगी या आइडेंटिकल होगी। जैसे 3 और 2 से जनरेटेड इक्विवेलेंस क्लास, दे आर डिसजॉइंट टू ईच अदर, नो एलिमेंट इन कॉमन इन बिटवीन क्लास जनरेटेड बाय 2 एंड क्लास जनरेटेड बाय 3। तो 2 इंटरसेक्शन 3 क्या हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, दे आर डिसजॉइंट। अगर 1 इंटरसेक्शन 2 देखो तो ये क्या होगा, ये आइडेंटिकल मिल रहा है, बोथ आर इक्वल। तो 2 equivalent classes are either disjoint or identical. This is one of the property of the equivalence class, very important property। 2 equivalence classes, ये लिखा हुआ है, 2 equivalence classes are either disjoint or identical। With in example you can see very clearly that the 2 equivalence class which was generated by 1 and 2, they are equal, but equivalence class which are generated by 1 and 3, they are disjoint। या तो दे आर आइडेंटिकल होंगी या फिर ये डिसजॉइंट होगी। कभी भी ऐसा नहीं होता कि 1 और 2 जो हो जाए उसमें से कोई सिंगल एलिमेंट कॉमन आ जाए, ऐसा नहीं होगा। या तो वो आइडेंटिकल इक्वल ही होंगी या फिर वो बिल्कुल कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ इक्विवेलेंस क्लासेस, पहली प्रॉपर्टी है, लेट ए बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन सेट ए। ए और बी दो आर्बिट्ररी एलिमेंट है, then every element, the equivalence class which was generated by the element is always belongs to A। आपने यहाँ एग्जाम्पल में देखा, अगर 1 से जनरेटेड एलिमेंट है तो 1 should also belongs to equivalence class generated by 1। 2 से जनरेटेड इक्विवेलेंस क्लास है तो हमेशा बिलोंग कर रहा है 2 इसमें। अगर 3 से जनरेटेड इक्विवेलेंस क्लास है तो 3 बिलोंग कर रहा है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कह रही है कि अगर इक्विवेलेंस क्लास किसी एलिमेंट से बिलोंग कर रहा है तो वो एलिमेंट उस इक्विवेलेंट क्लास में जरूर होगा, क्योंकि आर क्या है, हमारा इक्विवेलेंस रिलेशन है। इक्विवेलेंस रिलेशन की होने की वजह से एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी फॉलो करेगी हमेशा और हमेशा। 1 रिलेटेड टू 1, 1 से फाइंड आउट करोगे तो वो एलिमेंट जरूर बिलोंग करेगा इक्विवेलेंस क्लास में। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर कोई दूसरा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इक्विवेलेंट क्लास में तो आपका क्या होगा, दिलीप दुबे, हु इज दिलीप दुबे, दिलीप क्लास का टाइमिंग क्या है बेटा, अटेंडेंस लगवाने आए थे। मैम लीव कर दिया। ये अगर दूसरा कोई एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इक्विवेलेंस क्लास को तो ये क्या इंप्लाई करेगा, दो इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइडेंटिकल। इस एग्जांपल से दिख रहा है, अगर कोई दूसरा एलिमेंट बिलोंग कर रहा है इक्विवेलेंस क्लास से तो दो क्लासेस 1 और 2 देखो क्या है, आइडेंटिकल आ रही हैं, दिख रहा है। तो दूसरी प्रॉपर्टी भी यही है आपकी, इफ एनी अदर एलिमेंट बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास तो देन two equivalence classes are identical, a comma a equals to b। Third property, if two equivalence classes are equal if and only if a related to b, a comma b belongs to r। Fourth property ये है, either वही जो हमने आपको बताया, either two equivalence classes are identical or they are disjoint। Now we prove these properties and very important, ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए एग्जाम में आती है और आपको याद भी रखनी है। अगर एग्जाम ऑनलाइन हुआ तब तो मे भी शायद आपका पेपर ऑब्जेक्टिव होगा, तब भी आपको प्रॉपर्टीज रिमाइंड रखनी है। एंड अगर आपका डिस्क्रिप्टिव हुआ तो ये प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए आ सकती है। सिंस आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन, हाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज टेस्ट लेंगे, लेकिन आपको बता दिया हमने जिस दिन आपका ट्यूट होगा 1004 है ना, जिस दिन भी होता है ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, जिस दिन भी ट्यूट होता है 340 to 440 आई थिंक सो ट्यूट होता है आपका, शायद ट्यूसडे को होता है। तो आपका यहाँ तक इक्विवेलेंस क्लासेस तक एक छोटा सा टेस्ट होगा, सुनाई दे रहा है ना सबको? वी आर कंडक्टेड टेस्ट ऑन क्लास ऑन ट्यूटोरियल, मे बी हार्ड एंड
15-20 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं, 15 मिनट्स का। ओके मैम। तो बी प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। मुझे याद आया तो मैंने आपको बता दिया तुरंत क्वेश्चन के बीच में। ओके मैम। ओके बेटा, नाउ नेक्स्ट वी प्रूव द दिस प्रॉपर्टीज ऑफ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी है, आपको सारी प्रॉपर्टी समझ में आ रही होंगी बिकॉज यू हैव एन एग्जाम्पल, और साथ में एग्जाम्पल देखते जाओ तो आपको समझ में आएगा जो प्रॉपर्टी लिखी है बिल्कुल एग्जाम्पल फॉलो कर रहा है हमारा प्रॉपर्टी को। पहला आपका क्या है, पहली प्रॉपर्टी है कि एलिमेंट बिलोंग करेगा, तो वही रिफ्लेक्सिव की हमने आपको ऐसे ही बता दिया। every element belongs to equivalence class because R is an equivalence relation having an element of the type A is related to itself. A comma A always belongs to R. तो हर एक एलिमेंट अपने एलिमेंट से खुद बिलोंग ही कर रहा होगा, इट मीन्स A belongs to A. Same thing is written here. Since R is an equivalence relation, so R is reflexive for every A belongs to A is related to A. Since equivalence class generated by A, this is the definition which I have to written here. Set of all those x such that x belongs to A and x is related to A. This is the definition of equivalence class. Because A related to itself A, this implies A belongs to equivalence class A. Therefore, the first property is proved here. Your next property is, if B belongs to equivalence class, then we have to show that these two equivalence classes are identical. These two equivalence classes are equal. Now, if B belongs to A, then by the property of equivalence relation, B is belongs to A, by the property of, by definition of equivalence class, this specify that B is related to A. इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन से हमें क्या मिल जाएगा, अगर B कोई एलिमेंट है इक्विवेलेंस क्लास को बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये एलिमेंट इस सिंगल एलिमेंट ए से रिलेट कर रहा होगा बाय डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास। तो बी रिलेटेड टू ए बिकॉज आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन, इट इज सिमेट्रिक। स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ सिमेट्रिक की। सिंस आर इज सिमेट्रिक, सो ए इज रिलेटेड टू बी ऑल्सो, ए इज रिलेटेड टू बी। इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए हम करने क्या जा रहे हैं वो सुनो। यहाँ पर आपको प्रूव करना है ए इक्वल्स टू बी। जब भी हमें इक्वल प्रूव करना होगा तो हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले प्रूव करेंगे ए कंटेन इन बी, बी कंटेन इन ए, देन ए इक्वल्स टू बी। जब भी हमें इक्वल की प्रॉपर्टी प्रूव करनी होती है तो हम पहले प्रूव करते हैं ये इसमें कंटेन कर रहा है और ये इसमें कंटेन कर रहा है, तो ये क्या आ जाएगा, इक्वल। तो सब हम यही प्रूव करने जा रहे हैं। हमने इसको प्रूव करने के लिए कंसीडर किया सी कोई आर्बिटरी एलिमेंट है, वो इक्विवेलेंस क्लास बी में बिलोंग कर रहा है, यानी कि C belongs to equivalence class B, तो by definition of equivalence class C is related to B, or we say B is related to C because R is symmetric. B is related to C. अब आपको क्या क्या मिल गया, A related to B, B related to C, A related to B and B related to C. By the property of transitivity, A related to C. We have, because R is transitive, we have A related to C, or we say R is symmetric, C related to A, यानी C belongs to equivalence class generated by A. C हम क्या लेके चले थे, C B को बिलोंग कर रहे हैं और हमने क्या प्रूव कर दिया, वही C A को बिलोंग कर रहा है। तो यानी कि आपका क्या आ गया, जो सेट बी था वो इक्विवेलेंस क्लास ए में कंटेन्ड है। क्लियर, ये आगे इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या प्रूव करेंगे, ए कंटेन्ड इन बी। तो हमने एक्स एक आर्बिटरी एलिमेंट ले लिया जो कि ए में बिलोंग कर रहा है, तो बाय द डेफिनेशन एक्स रिलेटेड टू ए आ जाएगा। और आपको इक्वेशन नंबर 1 दी है ए रिलेटेड टू बी, ए रिलेटेड टू बी, एक्स रिलेटेड टू ए। सिमेट्रिसिटी की प्रॉपर्टी से वी राइट दिस थिंग, और ट्रांजिटिव एक्स रिलेटेड टू ए, ए रिलेटेड टू बी, यानी कि एक्स रिलेटेड टू बी बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी। यहां से क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास बी, क्योंकि बी ये फिक्स्ड एलिमेंट आ रहा है तो इक्विवेलेंस क्लास बी को बिलोंग करेगा। वो एलिमेंट एक्स जो ए को बिलोंग कर रहा था वही एलिमेंट बी को भी बिलोंग कर रहा है, यानी क्लास ए इज कंटेन इन क्लास बी। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 and 3, ए कंटेन इन बी, बी कंटेन इन A, B contain in A and A contain in B. From these two equation we have A equals to B. किसी को कोई प्रॉब्लम यहाँ तक, इस प्रॉपर्टी तक? No. किसी को कोई प्रॉब्लम?
मैम सेकंड वाली फिर से मैम, सेकेंड वाली फिर से बता दें। देखिए बस इतना याद रखो, हम इस प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए क्या करने जा रहे हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी को प्रूव करने के लिए बस सिंपल सी चीज, हमें ये प्रूव करना है, गिवन है, क्या गिवन है हमें, B belongs to A, then show that A equals to B। ये गिवन है B belongs to A, this equivalence class A। तो हमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट equivalence class A is equals to equivalence class B, ये प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम क्या लेके चलेंगे, this A contain in B and B, this B contain in B। प्रूफ क्या करेंगे, इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए हम ये कंसीडर करेंगे A कंटेन कर रहा है B में और B कंटेन कर रहा है A में, तो हमारा क्या प्रूव हो जाएगा, A इक्वल्स टू B। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करने वाले हैं कि हम एक एलिमेंट पहले हमने कंसीडर किया, लेट X बी एन एलिमेंट विच बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास A। तो बाय डेफिनेशन ये क्या दे देगा, X is related to A, by definition X related to A। एंड आपको गिवन है B belongs to, ये गिवन है आपको B belongs to this, यानी गिवन क्या है आपको, B is related, oh sorry shit, अभी क्या हुआ, आपको गिवन यहाँ क्या था, गिवन ये है कि B belongs to equivalence class A, यानी B is related to A, ये हमको गिवन है, ये वाली जो इक्वेशन है वो हमें गिवन है। तो यहाँ से हमें मिल गई X related to A, और we write and B related to A, और we write X related to A and A related to B। क्योंकि R सिमेट्रिक है तो यहाँ से क्या आ जाएगा, B related to A can be written as A related to B, B comma A belongs to A, because R is symmetric we write A comma B belongs to R। तो A related to B by the property of transitivity, because R is an equivalence relation, यहाँ से क्या आ जाएगा, this implies X related to B, it means X belongs to this equivalence class generated by B। तो हमने क्या प्रूफ कर दिया, we have to prove that जो X हम A में लेके चले थे, जो X हम A में लेके चले थे वही X B में बिलोंग कर रहा है। तो यहां से क्या आ जाएगा, this means A में लेके चले थे, A contain in B। यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन, A contain in B। नेक्स्ट पार्ट में आप क्या प्रूव करोगे, नेक्स्ट पार्ट में हम ये प्रूव करेंगे कि जो आप B contain in, next part we prove that B contain in A, ये प्रूव करेंगे। तो ये प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर प्रूविंग दिस एक आर्बिटरी एलिमेंट हम Y कंसीडर करेंगे। मान लीजिए Y बिलोंग कर रहा है किसमें, B में, इक्विवेलेंस क्लास B में। तो फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ क्लास Y रिलेटेड टू B आ जाएगा, एंड B रिलेटेड टू A ऑलरेडी गिवन है आपको, ये देखिए B रिलेटेड टू A ऑलरेडी गिवन है आपको यहाँ से, क्योंकि B बिलोंग्स टू A था, B रिलेटेड टू A गिवन है, और Y हम कंसीडर करें आर्बिटरी एलिमेंट जो B को बिलोंग कर रहा है। तो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिटिविटी
क्या आ जाएगा, y रिलेटेड टू a, y रिलेटेड टू a। जब y रिलेट कर रहा है a से, यानी कि आपको इक्विवेलेंस क्लास की डेफिनेशन मिल रही है, इट मींस y बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास a। y एलिमेंट जो b को बिलोंग कर रहा था वही किस में बिलोंग कर रहा है, a में, इट मींस b इक्विवेलेंस क्लास b कंटेन्ड इन इक्विवेलेंस क्लास a। फ्रॉम दिस इक्वेशन, जो कि इक्वेशन नंबर ये है, और ये वाली इक्वेशन, दोनों इक्वेशन क्या इंप्लाई करेंगी, बोथ द क्लासेस आर इक्वल, ए इक्वल टू बी। अब कंफ्यूजन है, यही प्रूव करना था, ए इक्वल्स टू बी। क्यों आकाश, समझ में आया? हाँ मैम। ए इक्वल्स टू बी, यही तो प्रूव करना था। जब भी इक्वल प्रूव करना होता है तो हम कंटेन की प्रॉपर्टी लेके चलते हैं कि एक दूसरे में दोनों कंटेन कर रहे हैं। इक्वल की डेफिनेशन ही यही है कि इफ ए कंटेन इन बी, बी कंटेन इन ए, देन दीज टू सेट्स आर इक्वल। तो हम यही प्रूव कर रहे हैं। हमने आर्बिट्ररी एलिमेंट दोनों सेट में कंसीडर किया और देखा एक दूसरे में कंटेन कर रहे हैं। तो फ्रॉम दिस इक्वेशन एंड फ्रॉम दिस इक्वेशन वी हैव टू प्रूव दैट दिस इक्वलिटी होल्ड। क्लियर है सबको? Now your next third property, हाँ मैम। Yes, ma'am. third property ये है, let a equals to b then prove that a related to b। बिल्कुल जैसे पहली वाली ये सेकेंड वाली प्रॉपर्टी प्रूव की है, बिल्कुल ऐसे ही प्रूव होगी। a रिलेटेड टू b का मतलब क्या हुआ, a बिलोंग्स टू b, जस्ट लाइक above सेकेंड प्रॉपर्टी वी प्रूव दैट दिस प्रॉपर्टी। तो आप पढ़िएगा और इसको समझिएगा। वही आर्बिट्ररी एलिमेंट्स लेके कंटेनिटी की प्रॉपर्टी से प्रूव करेंगे दीज टू आर इक्वल। ये देखिए, फ्रॉम कंटेनिटी की प्रॉपर्टी से सेम थिंग इज प्रूव हियर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मैक्सिमम आपके एग्जाम में आएगी, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दो तो वहां पर ये हमेशा आती है। रिलेशन इज ऑल्सो कम इन ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम एंड दिस प्रॉपर्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम पर्पस। ये प्रॉपर्टी क्या कहती है, टू इक्विवेलेंस क्लासेस आर आइदर डिसजॉइंट और आइडेंटिकल। अगर आपके पास दो इक्विवेलेंस क्लासेस हैं तो या तो वो आइडेंटिकल होंगी या वो डिसजॉइंट होगी। अभी आपने एग्जाम्पल से देखा, वी ऑल्सो हैव द एग्जाम्पल हेयर। कहाँ गया, अभी हमने देखा था, ये उधर कहीं शिफ्ट हो गया है, पता नहीं, आ भी नहीं रहा। ये है, दो इक्विवेलेंस क्लासेस या तो आइडेंटिकल हैं और या फिर दे आर डिसजॉइंट टू ईच अदर। सबको दिख रहा है ना? तो बस यही प्रॉपर्टी को हम प्रूव करने के जा रहे हैं। कह रहे हैं अगर हम ये सपोज करें, ये कहें कि इफ ए इंटरसेक्शन बी दीज टू आर इक्विवेलेंस क्लासेस, इसका अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी है, ठीक, देन द रिजल्ट इज ऑब्वियस। इसका मतलब क्या है, इसको हम प्रूव करने के लिए ऐसे प्रूव करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। हम ये कंसीडर करेंगे दो इक्विवेलेंस क्लास ए और बी हैं, ए से जनरेटेड है और बी से। अगर दो इक्विवेलेंस क्लास एम्प्टी हैं तो दे आर नॉट आइडेंटिकल, यानी कि एम्प्टी है तो दे हैव नो कॉमन एलिमेंट, इट मींस दे आर नॉट इक्वल। और अगर दे आर नॉट एम्प्टी देन वी हैव टू प्रूव दैट ए इज इक्वल्स टू बी। तो ये यही कह रहे हैं, अगर ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी हो गया, यानी कि कोई भी एलिमेंट इस इक्विवेलेंस क्लास और इस इक्विवेलेंस क्लास में इक्वल नहीं होगा, कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, इट मींस ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। तो यही लिख रहे हैं, अगर इंटरसेक्शन एम्प्टी है देन द रिजल्ट इज ऑब्वियस। नाउ सपोज दैट ए इंटरसेक्शन बी इज नॉन एम्प्टी। हमने ये सपोज किया कि इनका इंटरसेक्शन क्या है, नॉन एम्प्टी है, देन वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू क्लासेस आर इक्वल। हम ये सपोज करके चल रहे हैं कि इनका जो इंटरसेक्शन है इट हैज वन ऑफ द एलिमेंट विच इज कॉमन इन बोथ। तो हमें क्या प्रूव करना है, ये दोनों क्लासेस क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। अगर 1 2 इसमें बिलोंग कर रहा है तो 1 2 ही इसमें भी बिलोंग करेगा, दे बोथ आर इक्वल टू ईच अदर। तो हम ये लेके चल रहे हैं, इट इज नॉन एम्प्टी, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन एलिमेंट of set A which belongs to intersection of these two equivalence class A. That is, X belongs to set A such that this X belongs to in intersection of two equivalence classes. ये क्या imply करेगा, by definition of intersection X belongs to equivalence class A and X belongs to equivalence class B.
By definition of equivalence class, X is related to A and X is related to B. By the symmetric property, we write here A is related to X. Now by the property of transitivity क्या आ जाएगा? A is related to B. When A is related to B, अभी हमने property prove की from the second property, if A is related to B, then two equivalence classes are identical. We prove here, अभी की अभी हमने prove की थी कि अगर A relate कर रहा होगा B को तो दो classes equal होंगी और हमारा resultant prove हो गया. A is equals to B. If A is related to B by the property A is equals to B. हम क्या लेके चले थे? ये नॉन एम्प्टी है तो हमें क्या प्रूव करना था? These two are equal and hence the result. यहाँ पर एक मिसप्रिंटिंग है. पहली प्रॉपर्टी प्रूव हो गई आपकी. इफ A इंटरसेक्शन B इज नॉन एम्प्टी देन these two are identical. दूसरी प्रॉपर्टी ये लिखी है. इफ A इज यहाँ पर क्रॉस लगा हुआ है, A इज नॉट इक्वल्स टू B देन A इंटरसेक्शन B इज एम्प्टी. नॉट है यहाँ पर. A इज नॉट इक्वल्स टू B देन A इंटरसेक्शन B इज एम्प्टी. क्लियर है सबको? नाउ योर नेक्स्ट टॉपिक इज पार्टीशन ऑफ सेट. किसी को कुछ पूछना है यहाँ पर? हुदा मिर्जा. हु इज हुदा मिर्जा? हुदा भाई कौन है भाई? हुदा मिर्जा कौन है? बोलो कुछ. खच 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 हो रहा है बस. अटेंडेंस दीजिए. अच्छा आज की 28 है ना आज? अरुणेश. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अरुणेश. Yes, ma'am. स्नेही. स्नेही. Present, ma'am. स्नेहा Present, गुप्ता. शिवेंद्र सोनी. आकाश वर्मा. Yes, ma'am. आदर्श. आकाश वर्मा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. शिवानी चौहान. शिवानी इज देयर? नो. मैम उसने छोड़ दी यूनिवर्सिटी. एक दिन आई है क्लास में. आदर्श. हाँ मैम अब नहीं आती है. आदर्श कुमार मिश्रा. Yes, ma'am. सम्राट. Present, ma'am. सम्राट अर्जुन है ना? अंश अच्छा गुप्ता. मैम मुझे लगता है पहले मैंने आदर्श सिंह की एप्लीकेशन बोल दी है. सॉरी Yes, ma'am. अटेंडेंस बोल दी है मैंने. आपने सिर्फ आदर्श बोला था ना. ठीक है. मैम दो दोनों की आदर्श है. लग एक आदर्श सिंह है और एक आदर्श Yes, मिश्रा है. ma'am. Yes, आदर्श ma'am. कुमार मिश्रा है और मेरे पास बेटा आदर्श तो मेरे पास एक ही नाम है. आदर्श कुमार मिश्रा. सिर्फ दो आदर्श कहाँ हैं? आकाश दो है. एक मैम आकाश आपने दो चौहान. बार मैम आपने दो बार नाम बोला था ना. एक बार पहले आदर्श बोला था फिर अभी आदर्श कुमार मिश्रा. तो इसलिए मुझे लगा दो बार होगा. नहीं बेटा एक ही है. सम्राट अर्जुन सिंह. Present, ma'am. स्नेहा तुम्हारी बात हम बाद में सुनेंगे. अंश गुप्ता. Yes, ma'am. रवि प्रकाश. Yes, ma'am. शिवम पाल. शिवम पाल. नीतीश कुमार यादव. शनि दयाल. मैम नीतीश. Yes, ma'am. ओके दोनों लोग हो. सेजल वर्मा. Yes, ma'am. हुदा मिर्जा. हुदा वारसी. बेटा तुम मिर्जा है कि वारसी है? हुदा एक ही है. आकाश चौबे. आकाश. यस मैम. ज्योति. निशिका रस्तोगी. Yes, ma'am. हाँ. स्नेहा गुप्ता कहाँ थी तुम? कहाँ गई? मैम वो मेरा बीच में कॉल कट हो गया था इसीलिए. स्नेहा हेलो. गुप्ता. हाँ सुनाई दे गया मुझे. और कोई जिसकी अटेंडेंस नहीं हुई?
मैम मेरा हुआ नहीं नहीं गया। हो गया बेटा, हो गया, हो गया, हो गया। 12 17 बस करते हैं, पार्टीशन ऑफ सेट ऑफ मंडे को पढ़ाएंगे।